Passage number 73, Meditation, Part 9, Dhyan, Phase 2, Translation into Hindi. Meditation breaks down the frontiers of consciousness. ध्यान चेतना की सीमाओं को तोड़ देता है. It breaks down the mechanism of thought on the feeling which thought arouses. यह विचार और उस भावना के तंत्र को तोड़ देता है जिसको विचार जगाता है. Meditation, caught in a method, in a system of rewards and promises, cripples and tames energy. एक विधि, पुरस्कार और वादों की एक प्रणाली में जकड़ा पकड़ा गया ध्यान ऊर्जा को अपंग और वश में करता है. Meditation is the feeling of energy in abundance, and control, discipline and suppression spoil the purity of that energy. ध्यान ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में मुक्त करना है और नियंत्रण, अनुशासन और दमन उस ऊर्जा की शुद्धता को बिगाड़ देता है. Meditation is the flame burning intensely without leaving any ashes. ध्यान बिना कोई राख छोड़े प्रचंड रूप से जलने वाली ज्वाला है. Words, feeling, thought always leave ashes, and to live on ashes is the way of the world. शब्द, भाव, विचार हमेशा राख छोड़ते हैं और राख पर जीना दुनिया की रीत है. Meditation is danger, for it destroys everything. Nothing whatsoever is left, not even a whisper of desire. And in this vast, unfathomable emptiness, there is creation and love. ध्यान एक खतरा है क्योंकि यह सब कुछ नष्ट कर देता है. कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि इच्छा की फुसफुसाहट भी नहीं. और इस विशाल अथाह शून्यता में सृजन और प्रेम है. To continue, analysis, personal or professional, does not bring about mutation of consciousness. जारी रखने के लिए, विश्लेषण व्यक्तिगत या पेशेवर चेतना का उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन नहीं लाता है. No effort can transform it. Effort is conflict, and conflict only strengthens the walls of consciousness. कोई भी प्रयास इफोर्ट अर्थात इफोर्ट इसे रूपांतरित नहीं कर सकता. प्रयास संघर्ष है और संघर्ष ही चेतना की दीवारों को मजबूत करता है. No reason, however logical and sane, can liberate consciousness. For reason is idea wrought by influence, experience and knowledge, and all these are the children of consciousness. कोई भी कारण, चाहे वो कितना भी तार्किक और समझदार क्यों ना हो, चेतना को मुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि तर्क, प्रभाव, अनुभव और ज्ञान से निर्मित विचार है और ये सब चेतना के बच्चे हैं. When all this is seen as false or false approach to mutation, the denial of the false is the emptying of consciousness. जब यह सब झूठ के रूप में दिख जाते हैं, उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के लिए एक गलत तरीका के रूप में, यह असत्य के खंडन अर्थात डिनायल चेतना का खाली होना है. ट्रूथ हैज़ no opposite, nor has love. The pursuit of the opposite does not lead to truth, only the denial of the opposite. सत्य का कोई विपरीत नहीं है और ना ही प्रेम का. विपरीत की खोज सत्य की ओर नहीं ले जाती, केवल विपरीत का खंडन अर्थात डिनायल ही ले जाती है. There is no denial if it is the outcome of hope or of attaining. यदि यह आशा का परिणाम है या प्राप्त करने का परिणाम है तो यह कोई इनकार नहीं है. There is denial only when there is no reward or exchange. इनकार तभी होता है जब कोई पुरस्कार या विनिमय न हो. There is renunciation only when there is no gain in the act of renouncing. त्याग की क्रिया में कोई लाभ न होने पर भी त्याग होता है. Denial of the false is the freedom from the
positive, the positive with its opposite. असत्य का इनकार सकारात्मक से मुक्ति है इस सकारात्मक के विपरीत के साथ. The positive is authority with its acceptance, conformity, imitation and experience with its knowledge. सकारात्मक अपने ज्ञान के साथ अपनी स्वीकृति, अनुरूपता, अनुकरण और अनुभव के साथ अधिकार है. To deny is to be alone from all influence, tradition and from need, with its dependence and attachment. इनकार करना एकांत होना है, सभी प्रभाव, परंपरा और ज़रूरत से एकांत, इसकी निर्भरता और लगाव के साथ. To be alone is to deny the conditioning, the background. एकांत अर्थात alone होना, conditioning अर्थात अनुरूपता, पृष्ठभूमि को नकारना है. The frame in which consciousness exists and as its being is its conditioning. To be choicelessly aware of this conditioning and the total denial of it is to be alone. वो ढांचा अर्थात फ्रेम जिसमें चेतना अर्थात कॉन्शसनेस मौजूद है और उसका होना उसके अनुकूलन अर्थात कंडीशनिंग है, इस अनुकूलन के बारे में चयन बिना चॉइसलेसली जागरूक अर्थात अवेयर होना और इससे पूरी तरह इनकार करना एकांत अर्थात अलोन रहना है. दिस अलोननेस इज नॉट आइसोलेशन, लोनलीनेस, सेल्फ इनक्लोजिंग ऑक्यूपेशन. यह एकांतपन, अलोननेस, अलगाव अर्थात आइसोलेशन, अकेलापन अर्थात लोनलीनेस, खुद को बंद करने वाला काम नहीं है. अलोननेस इज नॉट withdrawal from life. On the contrary, it is the total freedom from conflict and sorrow, from fear and death. एकांतपन अर्थात अलोननेस जीवन से वापसी अर्थात विड्रॉल नहीं है. इसके विपरीत यह संघर्ष और दुख से, भय और मृत्यु से पूर्ण मुक्ति है. This aloneness is the mutation of consciousness, complete transformation of what has been. यह एकांतपन अर्थात अलोननेस चेतना का उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन है, जो हो चुका है उसका पूर्ण रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन. दिस अलोननेस इज एम्प्टीनेस. इट इज नॉट द पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग नॉर द नॉट बीइंग. यह एकांतपन शून्यता है, यह अस्तित्व की सकारात्मक स्थिति नहीं है, न ही न होने की स्थिति है. इट इज एम्प्टीनेस. इन दिस फायर ऑफ एम्प्टीनेस द माइंड इज मेड यंग, फ्रेश एंड इनोसेंट. यह खालीपन अर्थात एम्प्टीनेस है. शून्यता की इस अग्नि अर्थात फायर में मन को युवा, ताज़ा और निर्दोष इनोसेंट बनाया जाता है. इट इज इनोसेंसी अलोन that can receive the timeless, the new, which is ever destroying itself. यह केवल निर्दोषता अर्थात इनोसेंस ही है जो कालातीत अर्थात टाइमलेस को प्राप्त कर सकती है. वो नया जो हमेशा स्वयं को नष्ट कर रहा होता है. डिस्ट्रक्शन इज क्रिएशन. विनाश ही सृजन है. विदाउट लव there is no destruction. प्रेम के बिना विनाश नहीं होता है. Phase 3 Comprehension. Question number 1. What is the effect of meditation on consciousness according to the text? पाठ के अनुसार ध्यान का चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है? Meditation breaks down the frontiers of consciousness, the mechanism of thought and the feelings that thought generates. ध्यान अर्थात मेडिटेशन चेतना की अर्थात कॉन्शसनेस की सीमाओं, विचार के तंत्र और विचार से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को तोड़ देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द टेक्स्ट व्यू मेडिटेशन व्हेन कॉट इन अ मेथड और सिस्टम? किसी विधि या प्रणाली में फंसने पर ध्यान को किस प्रकार देखना है पाठ के अनुसार? Meditation, when trapped in a method or system, is seen as limiting
and suppressing energy which spoils its purity. ध्यान जब किसी विधि या प्रणाली में फंस जाता है तो उसे ऊर्जा को सीमित करने और दबाने के रूप में देखा जाता है, जो इसकी शुद्धता को खराब कर देता है. Next question, what does the text say about analysis in terms of bringing about a mutation in consciousness? चेतना में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन लाने के संदर्भ में विश्लेषण अर्थात एनालिसिस के बारे में पाठ क्या कहता है? The text asserts that analysis, whether personal or professional, does not lead to transformation of consciousness. इस पाठ इस बात पर जोर देता है कि विश्लेषण अर्थात एनालिसिस चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक अर्थात प्रोफेशनल, चेतना में रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता है. What is the role of denial in relation to conditioning according to the text? पाठ के अनुसार अनुकूलन अर्थात कंडीशनिंग के संबंध में इनकार की अर्थात डिनायल की क्या भूमिका है? Denial of conditioning and the total freedom from it leads to aloneness, which is the mutation of consciousness. अनुकूलन अर्थात कंडीशनिंग का खंडन अर्थात डिनायल और उससे पूर्ण स्वतंत्रता एकांतपन अर्थात अलोननेस की ओर ले जाती है, जो चेतना का उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन है. हाउ डज द टेक्स्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अलोननेस? पाठ एकांतपन अर्थात अलोननेस की स्थिति का वर्णन कैसे करता है? अलोननेस इज नॉट आइसोलेशन but the total freedom from conflict, sorrow, fear and death. It is the emptiness that leads to the transformation of the mind, making it young, fresh and innocent. एकांतपन अर्थात aloneness अलगाव अर्थात आइसोलेशन नहीं है, बल्कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, दुख, सरो, भय, फियर और मृत्यु, डेथ से पूर्ण मुक्ति है. यह खालीपन अर्थात एम्प्टीनेस ही है जो मन के रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता है, उसे युवा, ताज़ा और निर्दोष अर्थात इनोसेंट बनाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और पॉइंट्स टू मेक, प्लीज पुट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.